السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین قریش اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے تاریخی خطاب، کہا پاک افواج ہر قسم کے خطرے سازش کے خلاف ہم وقت تیار ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تحقیق مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تحقیق مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جناح کنونشن میں نوجوانوں سے خطاب کیا، کہا پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلاف کی میراث کو قائم رکھنا ہے۔ مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو یقین ہو کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں۔ سپہ سالار نے مزید کہا، دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ طلباء نے خطاب کے دوران پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یو ٹرن لینے والے نہیں، امپورٹڈ وزیر اعظم نہیں، مقامی وزیر اعظم تھا اور وہ ناکام تھا۔ دھوکے پہ دھوکا، جھوٹ پر جھوٹ، یہ ہمارا شیوا نہیں۔ نون لیگ کو موقع ملا تو وہ کام کر کے جائیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا عزم ننکانہ صاحب نے جلسے سے خطاب میں کہنا تھا کہ کیا یہ دشمنی تھی کہ ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کا پاکستان 2017 کے پاکستان سے بہتر ہے؟ وہ نہیں وزیر اعظم تھا، میں وعدہ کر کے تو بھول جائے اور اس کے بعد یو ٹرن کرے۔ یو ٹرن آپ جانتے ہم کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم نہیں ہے، مقامی وزیر اعظم تھا میں، مقامی، اور یہ ناکامی وزیر اعظم تھے، ناکامی۔ دھوکے پہ دھوکا، جھوٹ پہ جھوٹ، وہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون وہ کام دوبارہ کر کے جائے گی جڑی کہ تاریخ یاد رکھے گی انشاءاللہ۔ میرے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ کیا دشمنی تھی آپ کو نواز شریف کے ساتھ؟ آپ کو دشمنی یہ تھی کہ نواز شریف نے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی۔ ہمارے زمانے میں دہشت گردی کس نے ختم کی؟ آج مجھے بتائیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پہ اس مجمع میں کہ آج کا پاکستان نواز شریف کے 2017 کے پاکستان سے بہتر ہے؟ نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی حکومت آزاد امیدواران سے مل کر بنائیں گے۔ شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو کا بھلوال میں جلسے سے خطاب، ایک بار پھر حکومت بنا کر سب کو معاف کرنے کی بات کی، کہا ان کے لیے حرام ہوگا ان کی حکومت میں کوئی سیاسی قیدی ہو، وہ مخالفین ماں بیٹیوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے۔ سیاسی انتقام دیگر سیاستدانوں کو کھیلنے دیں گے، وہ عوام کی خدمت کریں گے۔ الیکشن گالم گلوچ کی بنیاد پر نہیں، منشور کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھنے والے نے آج تک منشور ہی نہیں دیا، عوام اس پر ووٹ ضائع نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ یہ شیر والے قائد حزب اختلاف ہوں گے۔ جب ہم نے حکومت بنایا تو صدر زرداری نے کہا پاکستان کھپے، میرے لیے حرام ہوگا کہ میرا حکومت میں کوئی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی رہے۔ کیا آپ یہی لڑائیاں چاہتے ہو کہ ایک سیاستدان آئیں تو وہ اپنے مخالف کے بہنوں کو، اپنے مخالف کے بیٹیوں کو گرفتار کرے؟ یہ جو سیاسی انتقام ہے، یہ جو ذاتی دشمنی ہے، باقی سیاستدانوں کو یہ کھیلنے دے۔ آپ ہمیں موقع دیں گے، ایک ایسا حکومت بنائیں گے جس کا کام آپ کی خدمت پہ ہمارا زور ہوگا۔ میں اپنا الیکشن گالم گلوچ کی سیاست پہ تو نہیں لڑ رہا ہوں، نہ ذاتی دشمنی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، میں اپنا منشور پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ چوتھی بار لڑ رہا ہے، وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا۔
صحیح معنوں میں نواز شریف میڈ ان پاکستان لیڈر ہیں، امپورٹڈ فتنہ نہیں ہے۔ نواز شریف عوام کا لاٹا ہے۔ ہمارا مقابلہ کسی شخص یا جماعت سے نہیں، مہنگائی سے ہے، بجلی کے بڑے بڑے بلوں سے ہے۔ مریم نواز کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب، کہا شیر پر اتنے ٹھپے لگانا کہ میاں صاحب کو کسی بیساکھی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ نواز شریف کو آپ نے فاؤل پلے، دھاندلی، جال سازی کر کے باہر نکالا۔ آپ کو جال سازی سے نہیں نکالا، آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ معنوں میں ایک میڈ ان پاکستان لیڈر ہے تو وہ کون ہے؟ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے باہر سے کسی نے فتنہ بنا کے لانچ نہیں کیا پاکستان میں۔ مریم نواز شریف کہتی ہے نواز شریف لاڈلا ہے، لیکن نواز شریف عوام کا لاڈلا ہے۔ نواز شریف کا مقابلہ، شیر کا مقابلہ کسی شخص سے نہیں ہے، آپ کی خدا نخواستہ غریب کی کمر توڑ دینے والی مہنگائی سے ہے۔ ہمارا مقابلہ آپ کے جو بجلی کے لمبے لمبے بل آتے، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی خدمت نواز شریف نے کرنی ہے تو نواز شریف صاحب کو اتنے ووٹ دینا، شیر پہ اتنے تھپے لگانا کہ اور کسی بیساکھی کی نواز شریف کو ضرورت نہ رہے۔ نواز شریف صاحب کو تو آپ نے فاؤل پلے کر کے، دھاندلی کر کے، جال سازی سے باہر نکالا۔ نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا، آپ نے اپنے آپ کو خود باہر نکالا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی آپ نے خود چلائی ہے۔ نوجوان پروپیگنڈے کو مسترد کر کے ریاست کی مستند معلومات پر انحصار کریں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا یوتھ کنونشن 2024 میں خطاب، کہا ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے دشمنوں کے پروپیگنڈے کو مسترد کرنا چاہیے۔ نوجوان قومی سلامتی کے چیلنج سے نبرد آزما ہونے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قوم نے دہشت گردی کے ناسور کا بہادری سے مقابلہ کیا اور قربانیاں دیں۔ پاک فوج نے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔ نوجوانوں کی شمولیت اور تعاون کے بغیر دہشت گردی کے خلاف فتح ممکن نہیں تھی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں، چین کے ساتھ شراکت داری پر مبنی تعلقات ہیں، صنعتی میدان میں ترقی سے معاشی استحکام آئے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا سستی توانائی کے حصول کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، ملک کو اقتصادی شعبے میں خود کفیل کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نسل کو مناسب سمت فراہم کر دی تو ماضی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی، درست رہنمائی نہ کی تو بڑا چیلنج بن جائے گا۔ شہباز شریف کا نوجوانوں سے مکالمہ، کہا ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، ہمارا اثاثہ نوجوان ہے، نوجوانوں کو آپریشن ٹریننگ دینا ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ About our path with proper consultative process and carve out our vision، معاملات بہت شاندار ہو جائیں گے اور جو ماضی کے دکھ ہیں وہ سکھ میں بدل جائیں گے اور ماضی کی جو ہماری جو تکالیف ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ ہماری جو پاپولیشن جو ہے 60% جو ہماری جو پاپولیشن ہے یہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے۔ اس کو اگر ہم نے صحیح طور پر ان کی رہنمائی نہ کی، ان کو ہم نے وسائل مہیا نہ کیے تو ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، یوتھ ہمارا اثاثہ ہے۔ اسی کو اگر ہم نے ایک بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا، تعلیم دلوا دی تو then there's nothing to worry۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بہت شاندار ہو جائیں گے۔ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے 5 سال پورے کرے، 2 سے 3 سال چلنے والی حکومتیں کام نہیں کر سکتی۔ چیئرمین IPP جہانگیر ترین کا لودھرا میں ورکرز سے خطاب، کہا عوام کے ووٹوں کی طاقت سے حکومت ہماری ہوگی، ایسے کام کریں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے، عوام نے موقع دیا تو لودھرا اور ملک کا چہرہ بدل دیں گے۔ یہ جڑا کام ہے نا سال آئے تے روح سال آئے تے حکومت مسئلہ بن ویندے کہ ویندے پہندے آدھے پہندے 5 سال دی حکومت ہوئے آرام نال بیٹھ کے کام کرو، 5 سال پاکستان کو مثالی ملک بناؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کو یہ موقع دیتا کہ اگر میں پہلے 100 کا کام کیتا تو 500 کا کام کرنا۔ لاہور میں بلاول بھٹو کی انتخابی مہم کے لیے آصفہ بھٹو متحرک نے 127 میں مرکزی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ جیالو سے خطاب میں کہا کہ 8 فروری کو عوام گھروں سے نکلیں اور بلاول بھٹو کا ساتھ دیں تاکہ وہ آپ کے حقوق کے لیے لڑ سکیں۔ تیر پر ٹھپا لگا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائے۔ بھٹو زرداری آپ کا چیئرمین، آپ کا بھائی ایک منشور دیا ہے، یہ ایک عوام دوست منشور ہے، یہ ایک غریب دوست منشور ہے۔ آپ نے سب گلی گلی جانا ہے،
घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी, जीत तीर की होगी, जीत आवाम की होगी और जीत दिस लाहौर शहर की होगी। मुल्क में सर्दी के बावजूद वोटर्स टर्नआउट अच्छा होगा। जिस पार्टी का मंशूर हमारे करीब होगा उससे बात होगी। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, हमारे पास अक्सरियत होती तो 10 साल पहले जनूबी पंजाब सूबा बन चुका होता। मेरा ख्याल है टर्नआउट अच्छा होगा, सर्दी के बावजूद भी और वैसे भी अच्छा टर्नआउट होगा। जो हमारा मंशूर होगा, जो हमारे मंशूर का साथ देंगे, आपसे भी ये अपील है कि आप हमारी पार्टी जो आपके मंशूर आपके करीब तर है उसको सपोर्ट करें ताकि हम कामयाब होकर अपने एजेंडा पे चल सकें। अगर सारी कौमी असम्बली अक्सरियत होंदी तो असां कजण दा सूबा अज 12 साल पहले बन चुका होगा। सिंध में जो हर दफ़ा हम ज़्यादा नशस्तें लेते हैं वो खिदमत है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध में वहाँ पे सबके लिए इलाज मुफ्त किया। तो ये बात अगर पंजाब में, केपी में या बलूचिस्तान में किसी और ने की है तो वो हमें बताएं। बिलावल भुट्टो ने अपने मुख्तसर अरसे में जो फॉरेन पॉलिसी को एड्रेस किया उसमें रिकॉर्ड है। जब वक्त आएगा मेरी बच्ची को पता पड़ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो तारीख में आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी ताक कर हमले किए। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीपी को आड़े हाथों ले लिया। पलविशा खान ने लीगी रहनुमा को खूब जवाब दिया। मरियम औरंगजेब बोली, बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। मुझे अफसोस है बिलावल भुट्टो साहब कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की नींदें हराम हुई हैं, बिलावल साहब के लाहौर के एक हलके की सियासत ने पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून के पैर उखाड़। ये भी सिंध का हक है कि वहाँ मेट्रो बस हो, ये कराची का हक है वहाँ ऑरेंज ट्रेन हो, ये कराची का भी हक है वहाँ साफ पीने का पानी हो। सिंध का हक है कि वहाँ स्कूल्स हो, दानिश स्कूल हो। और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। और आप इक़्तिदार की खातिर किसी हद पर भी जा सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बातें करते हुए। जो फैसला पीडीएम की गवर्नमेंट ने लिया उसमें बिलावल भुट्टो साहब ये सब उन फैसलों में बराबर के हिस्सादार। पीडीएम की हुकूमत में अगर कोई अच्छे काम किए गए तो उस तमाम जो है बयानिए का बेड़ा गर्क करने का जो सेहरा है वो भी इन्हीं शख्सियत के सर पे। ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं, बोलना सबको आता है। ये जो बादशाहत का ताज सर पे इलेक्शन से पहले सजा के बैठे। आम इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी रह गए हैं। इलेक्शन की तैयारियां तेज हो गई। इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली है। कहीं बल्दियाती नुमाइंदों को उम्मीदवारों की मदद न करने की वार्निंग तो कहीं तरबियत से गैर हाजिर 97 खवातीन असातिज़ा मुअत्तल। इलेक्शन करीब तर सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए। इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक, हतमी पोलिंग स्कीम भी तैयार। बल्दियाती नुमाइंदों पर इंतखाबी मुहिम में अफरादी कुव्वत और मशीनरी के इस्तेमाल के इल्जामात का नोटिस। 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला अरसाल। बल्दियाती नुमाइंदों को उम्मीदवारों के मददगार बनने से रोकने की हिदायत। दूसरी जानिब मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम करने का फैसला। पंजाब में 52,000, सिंध में 19,000, केपी में 15,000 और बलोचिस्तान में 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में तरबियत से गैर हाजिर 97 खवातीन असातिज़ा मुअत्तल। 26 खवातीन असातिज़ा से वजाहत तलब कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में 1,33,275 असिस्टेंट प्रेजाइडिंग और पोलिंग अफसरान की तरबियत मुकम्मल। 125 तरबियती मराकज में ट्रेनिंग का अमल जारी है। इंतखाबात के हवाले से कवरेज के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। मीडिया के नुमाइंदों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। पेशावर समेत सूबे भर में सहाफ़ियों के लिए तरबियती सेशन। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। इंतखाबात में मीडिया कवरेज के ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से पेशावर के सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा तरबियती सेशन का एहतमाम किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सुहेल अहमद कहते हैं, मीडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है। कानून के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पे जो दाखिला है वो अलाउड है, वोटर पड़ जाएगा। वोटर के बाद कैंडिडेट
या उसका इलेक्शन है। सेशन में शरीक सहाफियों ने बताया तरबियत से ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद में मदद मिलेगी। आज का जो ये सेशन था, ये एक तरबियती सेशन मुनक्किद किया गया है सहाफ़ियों के लिए कि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, वो उसके मुताबिक पोलिंग का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसकी वो रिपोर्टिंग कर ले। 8 फरवरी को पुरअमन इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। सूबे में इंतखाबात से मुतालिक उठाए गए इंतजामात इत्मीनान बख्श हैं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे में 3 उम्मीदवारों पर हमले हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उम्मीदवारों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं पुरुम्मीद हूँ। मैंने तकरीबन हमारे सारे डिवीजन का दौरा हुआ है। ओवरऑल इनकी तैयारियों से मैं मुतमईन हूँ कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली। इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन साफ शफाफ और माजी में भी होते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों कैंडिडेट हमारे ठीक ठाक हैं और महफूज रहें और हमें उम्मीद है कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर है एक दहशतगर्दी का माहौल चल निकला है, लेकिन उम्मीद है कि हमारी इंतज़ामिया और फोर्सेस और एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। तो दूसरी जानिब मुफ्त बिजली गरीबों के लिए घर के बाद अब रिक्शे की भी एंट्री हो गई। MQM के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार ने बेरोजगारों के लिए किस्तों पर रिक्शा देने का ऐलान कर दिया। तमाम रिक्शा चलाने वाले भाइयों और दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस इलाके के बेरोजगारों को इंशाअल्लाह छोटे कर्जे दिलाकर उन्हें छोटे आसान कर्जों पर रिक्शा की सहूलत हजारों की तादाद में फराहम करेंगे। गैस और बिजली के महकमों को मैं कहता हूँ कि अगर पंजाब में गैस आ रही है, KPK में गैस आ रही है, 70% टैक्स देने वाले शहर में अगर गैस नहीं आ रही तो वो अपना किबला दुरुस्त कर ले। 22 में से 22 सीटें MQM पाकिस्तान निकालेगी। सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। 15 साल का जबर और जुल्म 8 फरवरी को खत्म होने जा रहा है इंशाअल्लाह। MQM पाकिस्तान की सोशल मीडिया की तशहीर डिजिटल मीडिया पर किस तरह की जाती है? तफसीलात जानने के लिए चलते हैं MQM पाकिस्तान के मरकजी इलेक्शन ऑफिस, जहां बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आबदी मौजूद हैं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान के सोशल मीडिया के दफ्तर के अंदर, जहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान डिजिटल मीडिया का काम कर रही है। MQM पाकिस्तान इस वक्त NA की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के ऊपर किस तरह से काम कर रही है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ की इंचार्ज सोशल मीडिया सबीन गौरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो है आजकल सब कुछ जो है वो डिजिटल वर्ल्ड पे अवेलेबल है और दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज होकर रह गई है। तो बहुत आसानी है कि जितनी भी हमारी मैन पावर है उसके बजाय डिजिटली जो है वो हम हर चीज से कनेक्ट हैं। हमने जो है वो एक माई वोटर्स ऐप का भी इजरा किया है, जिसके अंदर जो है वो यहीं से बैठ के हम तमाम जो टाउन्स को हम जो है वो थ्रू इंटरनेट कनेक्ट भी कर सकते हैं और वहाँ के जितने भी वोटर्स हैं उनका फॉलो। पहले ये होता था कि घर घर जाके आप कार्ड्स जो है वो दिया। वजाहत आपका बहुत शुक्रिया। कराची में टारगेट किलिंग की वारदातों की तहकीकात में पेशरफ। न्यू कराची में सनतकार के बेटे और वाटर पंप पर ताजर की टारगेट किलिंग के वाक़े में एक ही गुरोह मुलविस निकला। मुबीना टाउन में 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कराची में फिर टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। वारदातों की तहकीकात में पेशरफ। गुज़िश्ता दिनों पेश आए वाक़यात में एक ही गिरोह मुलविस पाया गया। न्यू कराची में सनतकार के बेटे और वाटर पंप पर ताजिर की टारगेट किलिंग। असलहे के साथ टारगेट किलर का लिबास भी एक ही था। दोनों वाक़यात के बाद पुलिस को मिलने वाली गोलियों के खौल भी फॉरेंसिक जाँच के दौरान मैच कर गए। इधर मुबीना टाउन में 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात शामिल। दुकान पर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हुए थे। अयूब और अब्दुल बारी जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए थे। कराची में दंदनाते ट्रॉलर मौत के हरकारी बन गए हैं। कोरंगी में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल रोंद डाली। हादसे में मां और बेटी जाँ बहक, जबकि बाप और 2 बच्चे महफूज रहे। बदनसीब खानदान शादी तकरीब से घर जा रहा था।
में ट्रॉलर मौत बांटने लगे। कोरंगी में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मोटरसाइकिल गिरने से ट्रॉलर मां बेटी पर चढ़ गया। दोनों मौके पर दम तोड़ गयीं। बाप और 2 बच्चे मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। जाँ बहक होने वालों में 33 साला नादिया और 15 साला शुमाइला शामिल है। मुतवफ़ी के शौहर नियाज ने बताया, ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल स्लिप हुई तो तेज रफ्तार ट्रॉलर हम पर चढ़ गया। गिरने के बाद मेरे बीवी और मेरे बच्चे को पहले वाले ने कुचल दिया। कितने लोग थे आप मोटरसाइकिल में? 5 अफराद थे हम लोग। 2 बच्चे बच गए मेरे, एक बच्ची और एक मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर तहवील में ले लिया। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गयी। सेंट्रल जेल में कैदियों के इम्तहानात। 250 से ज्यादा कैदियों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। कैदियों ने जेल इंतजामी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तालीम इंसान को शऊर देती है। देखते हैं खुरम गुलजार की रिपोर्ट। की सलाखों के उस पार भी इल्म के चिराग रोशन। सेंट्रल जेल कराची की इंतजामिया कैदियों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए कोशा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से इम्तिहान लिया गया। 250 से जायद कैदियों से उर्दू अदब, अरबी और सिंधी के पर्चे लिए गए। कैदियों ने जेल इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। तालीम एक अच्छी चीज़ है, हर इंसान को तालीम हासिल करनी चाहिए और तालीम को उम्र से कोई लेना देना नहीं है और हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो तालीम हासिल करे। तकरीबन 5 साल से कुछ इधर कैद हूँ और पेपर जो है बहुत बड़ी सहूलत है हमारे लिए। जेल के अंदर रह के तो जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उर्दू अदीब का तो पहले मैं दे चुका था, अभी अरबी अदीब का जो मैं पेपर दे रहा हूँ। इंचार्ज एहसान ने बताया कि कैदियों में तालीम का रुझान बढ़ रहा है। ये आज 250 कैदी यहाँ पर इम्तिहान, उर्दू अदीब, सिंधी अदीब और अरबी अदीब का इम्तिहान हो रहा है। और ये माशाल्लाह मैं आपको सब कैदी दिखाता हूँ। इसमें हर उम्र का कैदी है और ज्यादातर 90% ये जो कैदी है ये है सजा याफ्ता कैदी। गुज़िश्ता साल सितंबर में हुनरमंद कैदियों के बनाए हुए हैंडबैग्स, पेंटिंग्स और दीगर अशिया को आर्ट्स काउंसिल में पेश किया गया था। कराची में खुफिया सुरंग के जरिए करोड़ों रुपए की तेल चोरी पकड़ी गई है। पोर्ट कासिम पर खोदने तेल निकालने वाली मिल से 174 फीट लंबी सुरंग मिली। 65,000 लीटर चोरी शुदा डीजल बरामद कर लिया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए मिल मालिक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता रहे हैं, कराची में खुफिया सुरंग के जरिए करोड़ों रुपए की तेल चोरी पकड़ी गई। पोर्ट कासिम पर खुर्दनी तेल निकालने वाली मिल से 174 फीट लंबी सुरंग मिली। 65,000 लीटर चोरी शुदा डीजल बरामद कर लिया गया, जबकि कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए मिल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मंजर आम पर। आलमी जरीदे ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत खुफिया तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्द कुव्वतों की माली मुआवनत कर रहा है। भारत बलूचिस्तान में मखसूस दहशतगर्दों को माली मदद, असलहा फराहम कर रहा है। खून बलोचों के हाथों करवाया गया। Ever since I've been directing various activities in Balochistan and Karachi. भारत की पाकिस्तान में बदअमनी की साजिशें बेनकाब। भारत खित्ते में इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बलोचिस्तान में मकामी लोगों को बगावत पर उकसा रहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज अहमद बंगलजई ने इस बात का एतराफ किया कि भारत बलोचिस्तान में खुफिया तौर पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत कर रहा है। मार्च 2016 में बलोचिस्तान से भारतीय खुफिया जासूस कलभूषण यादव को दरअंदाजी की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चीनी माहिर आलम अमूर ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के हवाले से मुसलसल दोहरा मेयार अपनाता हुआ आ रहा है। भारत का पाकिस्तान में दरअंदाजी का मकसद सरमायाकारी को रोकना और पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करना है। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो आलमी क़वानीन बालाए ताक। जंगी जराइम का इर्तिकाब करता इसराइल गजा की पट्टी पर मजीद बम बरसाने लगा। ताज़ा सफाकाना हमलों में मजीद 210 फ़लस्तीनी शहीद और 400 से ज़्यादा जख्मी कर दिए गए। अल नसर अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, रफ़ा, दीरुल बलाह और खान यूनुस में आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। आरियत और बर्बरियत के सामने आलमी फोरम्स बेबस। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी इसराइली कठपुतली का किरदार अदा करने लगे। अमरीकी पुष्टपनाही रखने वाला इसराइल अल नसर अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, रफ़ा, दीर अल बला और खान यूनुस में आबादियों को निशाना बनाने लगा। ताज़ा हमलों में मजीद 210 फ़लस्तीनी शहीद और 400 से ज़ायद जख्मी कर दिए।
इसराइल की तालीम दुश्मनी गजा के ज्यादातर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी। अब तक 25,700 फलस्तीनी शहीद और 63,740 जख्मी किए जा चुके हैं। में 4 इसराइली फौजी अल-कसाम हमले में मारे गए। इसराइल ने हमास के साथ 2 माह तक जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए 6 शराइत पेश कर दी। अगले 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है। दूसरी जानिब यूएन और बरतानिया ने 2 रियासती हल पर जोर दिया है। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि मिडल ईस्ट में अमन का कयाम 2 रियासती हल से मुमकिन है। अमरीका ने गजा में इलाकाई तब्दीलियों और गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज की मुखालफत कर दी। बिजली के नर्ख कम करने के लिए निगरां हुकूमत का अहम इक़दाम। 14 विंड पावर प्लांट्स को अदायगियाँ रोक दी गई। नए मुआहदे के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमत कम करने के लिए बड़ा फैसला। 14 विंड पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए की अदायगियाँ रोक दी गयी। जराये का बताना है कि तहकीकात में विंड पावर प्लांट्स की इजाफी लागत पकड़ी गई थी, मगर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। विंड पावर प्लांट से टैरिफ कम करवाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। कमेटी को शुगर मिल्स के पावर प्लांट्स का टैरिफ कम करवाने का टास्क भी सौंपा गया है। पावर प्लांट्स पहले टैरिफ को कम करते हुए नया मुआहिदा करें, फिर अदायगियाँ होंगी। MDPPIB की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी ने समरी अरसाल कर दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास 26 जनवरी को तलब कर लिया गया। कमेटी नीलम झेलम पन बिजली मंसूबे के बाइस मुजफ्फराबाद को दरपेश पानी की किल्लत पर भी गौर करेगी। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, जहां कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान रहा। इंडेक्स तेजी के बायस 65,000 की सतह बहाल करने में कामयाब हो गया। 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 368 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे मजीद सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत में इस्तेहकाम रहा। एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मुस्बत रुझान। इंडेक्स 65,000 की सतह बहाल करने में कामयाब। 368 पॉइंट्स का इजाफा। KES 100 इंडेक्स 64,822 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 22 अरब रुपए मालियत के 47 करोड़ हिस्सों का कारोबार हुआ। 198 कंपनियों के हिस्सों की कीमतों में इजाफा। 128 में कमी हुई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। 12 पैसा मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 279.67 रुपए हो गई। सोने की कीमत में इस्तेहकाम। फी तोला कीमत 2,15,200 रुपए पर बरकरार है। पाकिस्तान की मईशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया है। आलमी मौशी रेटिंग एजेंसी का दावा। फिच ने एशियाई ममालिक की मौशी रिपोर्ट जारी कर दी। एजेंसी ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की वजह IMF प्रोग्राम करार दे दिया। फिच की एशियाई ममालिक की मुआशी रिपोर्ट जारी। फिच ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका को मजीद चंद साल IMF प्रोग्राम का हिस्सा रहने की जरूरत है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। 2024 एशिया में इंतखाबात का साल। इंतखाबात के बाइस एशियाई ममालिक मुआशी इस्तेहसाल का शिकार हैं। इंतखाबात के बाद मुआशी इस्तेहकाम की पॉलिसियाँ मजीद वाज़ेह होंगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया और श्रीलंका में इलेक्शन होना बाकी है। इलेक्शन के साल में इस्लाहात का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। और आलमी बैंक ने पाकिस्तानी निसाब बरतानवी शहरी महनाज मलिक को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सैंक्शंस बोर्ड का रुकन मुकर्रर कर दिया है। 7 बैरूनी जजेस पर मुश्तमिल वर्ल्ड बैंक सैंक्शंस बोर्ड एक आज़ाद इंतजामी ट्रिब्यूनल है जो आलमी बैंक की माली एआनत से चलने वाले तरक्याती मंसूबों में बद इंतजामी के तमाम मुतनाज़े मुकदमात में हतमी फैसला साज के तौर पर काम करता है। महनाज मलिक का ताल्लुक लाहौर से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में ही हासिल की। स्कॉलरशिप पर कानून की तालीम हासिल करने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गईं। साबिक कप्तान ने मलिक को दूसरी शादी पर मुबारकबाद और दुआ दी। कहा कि शोएब मलिक को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला शोएब मलिक को इसी शरीके हयात के साथ हमेशा खुश रखे। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क भर में सर्दी का जोर बरकरार। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। महकमा मौसमियात ने बरी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। में सरमा अपनी जोबन पर। शुमाली इलाकों में पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमास से नीचे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादलों के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा में सर्द हवाओं का राज। बलूचिस्तान में मौसम अबर आलूद। पंजाब और सिंध में भी कड़ाके की ठंड। मरी गलियात में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जुम्मे को बलूचिस्तान में भी बाराने रहमत मुतवक्के है।
पर सालेबट में दरगाह फ़कीर पर सकाफती मेले का इनेकाद। ऊँटों की रेस और रक्स ने लोगों को दाद देने पर मजबूर कर दिया। सालेबट के गोट धूलवारों में सकाफती ऊँट मेले का इनेकाद। मेले में सांगड़ गोट की खैरपुर, खानपुर समेत दीगर इलाकों से ऊँट लाए गए। खूबसूरत ऊँटों की दौड़ के मुकाबले ऊँटों का रक्स खास तवज्जो का मरकज रहा। मेले में ऊँटों के सिंगार के सामान के स्टॉल भी लगाए गए। खाने पीने के रिवायती स्टॉल्स पर शहरियों का रश रहा। मुकामी अफराद ने हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा, हम ये सालाना मेला अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं। हुकूमत की जानिब से हमें कोई सहूलत फराहम नहीं की जाती। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।